विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। यूएनएससी की बैठक में एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जिसका जवाब देते हुए सफीर आर रविंद्र DPR ने पाकिस्तान को एक बार फिर फटकार लगाई है। सफीर आर रविंद्र DPR ने कहा कि पाकिस्तान अपने ऊपर ध्यान दे। Mr. President, before I end, there was a remark of habitual nature by one delegation referring to union territories that are integral and inalienable part of my country. I would treat these remarks with contempt they deserve and not dignify them with a response in the interest of time. I thank you. और इसराइल गजा तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सफीर आर रविंद्र DPR ने अपने बयान में कहा कि भारत को सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल और जारी तनाज़े पर तशवीश है। भारतीय सफीर ने बड़े पैमाने पर आम शहरियों की जानों के नुकसान पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। सफीर आर रविंद्र ने कहा कि सबसे पहले भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जारी तनाज़े और जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत की थी। वहीं हिंदुस्तान ने फलस्तीन के लोगों के लिए 38 टन इंसानी सामान बशमूल अद्वियात और आलात भेजे हैं। हिंदुस्तान ने हमेशा इसराइल फलस्तीन मसले के 2 रियासती हल के लिए बातचीत की है। हिंदुस्तान फलस्तीन के लोगों के लिए इंसानी इमदाद भेजना जारी रखेगा। India is deeply concerned at the deteriorating security situation and large-scale loss of civilian lives in the ongoing conflict. The mounting humanitarian crisis is equally alarming. The escalation of hostilities in the region has only exacerbated the dire humanitarian situation and has once again underscored the fragile nature of the ceasefire. The 7th October terror attacks in Israel were shocking, and we condemn them unequivocally. Our Prime Minister was one of the first global leaders to have conveyed his condolences for the loss of lives and prayers for the innocent victims and their families. We stood in solidarity with Israel at their moment of crisis when they were facing these terror attacks. Mr. President, we have also expressed deep shock at the tragic loss of lives at the Al-Ahli Hospital in Gaza, where several hundreds of civilian casualties have occurred and thousands injured. Our heartfelt condolences to the families of the victims and prayers for speedy recovery of the injured. Our Prime Minister clearly spelled out that those involved must be held responsible. Civilian casualties in the ongoing conflict are a matter of serious and continuing concern. All parties must protect civilians, especially women and children. The unfolding humanitarian crisis needs to be addressed. We welcome the efforts of the international community for de-escalation and delivery of humanitarian goods to the people of Gaza. India has sent 38 tons of humanitarian goods, including medicines and equipment, to the people of Palestine. We also urge the parties to work towards creating conditions necessary for peace and for restarting of direct negotiations, including through de-escalation and eschewing violence. Mr. President, India has always supported a negotiated 2-state solution to the Israel-Palestine issue, leading to the establishment of a sovereign, independent, and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders side by side in peace with Israel, taking into account the legitimate security concerns of Israel. Towards this, we reiterate the need for an early resumption of direct peace negotiations. We also continue to support the Palestinian people through our bilateral development partnership, which covers a wide range of sectors, including health, education, women's empowerment, entrepreneurship, and information technology. We are also supporting grassroots Palestinian institutions in their developmental initiatives. We have supported UNRWA over decades for its humanitarian services. In these challenging times, India will continue to send humanitarian assistance to the people of Palestine. और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने गजा में जारी तनाज़े पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। उमर ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है और कत्ल किया जा रहा है। कोई मजहब बेगुनाहों के कत्ल की इजाजत नहीं देता।
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो हैरान है कि हुकूमत हिंद इस पर बात क्यों नहीं कर रही है, यहां तक कि बैनुल अक़वामी बिरादरी भी खामोश है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर की बात करें तो मीर वाइज उमर फारूक को 4 सालों बाद रिहा किया गया, मगर 2 हफ्तों के बाद ही इन्हें दोबारा जामा मस्जिद जाने से रोक दिया गया। जहां तक जामा मस्जिद या मीर वाइज की बात है, अफसोस है 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले तो इतना शोशा करके आपने उनको छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि अब हालात इतने ठीक है कि उनको बंद करने की ज़रूरत नहीं। अगर 4 हफ्ते पहले उनको बंद करने की ज़रूरत आपको महसूस नहीं हुई तो फिर लगातार 2 जुमा उनको बंद रखा गया और जामा मस्जिद पे फिर से नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। एक तरफ से तो दुनिया को ये कहा जा रहा है कि कश्मीर के हालात जो हैं बिल्कुल सुधर गए हैं, नॉर्मल हैं। अगर नॉर्मल हैं तो जामा मस्जिद में नमाज की इजाज़त दे दीजिए जुमा को। हम तो पहले दिन से जो गाज़ा में हो रहा है उसकी मुखालफत करते आए हैं। बेगुनाहों को इस तरह मारना समझ में नहीं आता। रोज अगर आप देखें, चाहे टीवी चाहे मीडिया, गाज़ा की बमबारी में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल को इस मामले में खुली छूट दी जा रही है और दुनिया ने ये शायद साबित किया है कि इजराइल के लिए एक कानून है और रूस के लिए दूसरा। जब रूस ने यूक्रेन का गैस बंद किया, पानी बंद करने की कोशिश की, खुराक बंद करने की कोशिश की, तो यूरोपियन यूनियन के सदर ने कहा कि दिस इज अ वॉर क्राइम। ये रिकॉर्ड है, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। अगर जो रूस ने यूक्रेन के साथ उस वक्त किया वो वॉर क्राइम था, तो फिर क्या जो इजराइल गाज़ा के साथ कर रहा है क्या वो वॉर क्राइम नहीं है? केंद्र सरकार ने इसमें कोई बात छुपाई तो है ही नहीं। पहले दिन से उन्होंने इजराइल का साथ दिया। उसके बाद फिर शायद वहां पे ये देख के कि बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, उन्होंने गाज़ा में एड रिलीफ भेजने की बात की, लेकिन वो भी समुंदर में कतरा के बराबर है। जहां रोज दिन के 100 ट्रक जाया करते थे, आज 20 ट्रकों को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बमबारी रुकनी चाहिए। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी, लेकिन कम से कम बेगुनाह लोगों को इस बमबारी में जो निशाना बनाया जा रहा है वो रुकना चाहिए। और गजा में बेगुनाहों की हलाकतों के खिलाफ सब डिवीजन सिंध को करगिल में ख्वातीन की तंजीम ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इसराइल की जानिब से फिलिस्तीन पर बमबारी जारी है, जिससे बच्चों समेत हजारों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दूर है कि उन यतीमों के सर पे हाथ तो हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम आवाज़ तो उठा सकते हैं। हम उनके लिए पैसे के ज़रिए मदद कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। उन मज़लूमों की हम याद करके उनकी यकजहती के हम इज़हार कर सकते हैं। तो अभी हम सब अंजुमन साहिब ज़मान की तरफ से और बसीज फातिमिया की तरफ से हम सब यहाँ पे मिलजुल के उनके लिए यकजहती का हम इज़हार कर रहे हैं। हम सब अंजुमन साहिब ज़मान के ज़ेर एहतमाम बसीज फातिमिया के बैनर तले आज मज़लूमीन और मुस्तज़अफ़ीन फ़िलिस्तीन की हिमायत में यहाँ ये इजलास कर रही हैं। और जैसा कि हमारे मौला अमीर अल-मोमिनीन का फरमान है कि ज़ालिमुन के साथ बुग़्ज़, अदावत और नफ़रत निस्बत होनी चाहिए, और मज़लूमीन के निस्बत हमारे दिलों में हमारी निस्बत मोहब्बत और उल्फत के साथ होनी चाहिए। और जिस तरह से कई मुद्दत से कई ज़मान हो चुके हैं कि इसराइल अपने जारिहाना और बर्बरियत के जिस तरह हमले फ़िलिस्तीन पर किए जा रहे हैं, हम इसके भरपूर शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हम फ़िलिस्तीन के अवाम के साथ हैं। और बडगाम के कई इलाकों में इन दिनों बिजली की काफी कटौती देखने को मिल रही है। ओमपुरा, बडगाम और मुलक्का इलाकों के लोग इंतजामिया से नाला हैं। लोगों का इल्जाम है कि इन्हें शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम नहीं की जा रही है।
उधर पीडीडी बडगाम के एईई गुलजार अहमद ने न्यूज 18 के साथ फोन पर बात करते हुए यकीन दिलाया कि वो इस मसले को देखेंगे और कार्रवाई करेंगे। झूठ पर मबनी हर एक बात जो ये कहते हैं, आप देखिए मीटर लगाए सब कुछ लगाए लेकिन फिर भी केबल्स लगाई फिर भी 8-9 घंटे बिजली नहीं रहती है। उसके बाद भी फिर ग्रिड का मसला होता है, फिर ग्रिड में फॉल्ट ये है, कोई बिजली नहीं चलती। ये सब बेबुनियाद वादे हैं, झूठे वादे हैं हुकूमत की तरफ। बहुत मुश्किलात। विंटर की तो आप बात में छोड़ो, अभी की बात है, इससे पहले जो गर्मियों का भी मौसम था हमें तकरीबन 9-10 घंटे बिजली बंद रहती है। और ग्रिड की मैसेज अब एक नया बहाना इनका है, एक तो हमें कटलमेंट है, अब 8 घंटे इन्होंने शुरू किए। और ग्रिड का कोई मैसेज का मसला था, अब ये ग्रिड मैसेज है वो 6 घंटे अलग हमें रहती है। कुल मिला के 14-15 घंटे हमें जो अभी कटलमेंट रहती है। टोटल हम सफ़र कर रहे हैं क्योंकि अभी बर्फ़ भी नहीं पड़ी है, तो ये हाल अभी है। हम सोचते हैं जब बर्फ़ पड़ेगी तो हमारा हाल क्या होगा, इसलिए हम मेहरबानी करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खासकर तो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर बडगाम से गुजारिश करते हैं, हमें सड़कों पे आने पर मजबूर मत कीजिए। 4-5 दिनों से बिल्कुल कम आ रही है। कल सुबह ही 9 बजे इन्होंने बिजली ली है, शाम को 10 बजे बिजली आई है। वहाँ पे सिडको है, वहाँ पे 24 घंटे पावर होता है। हमारे कॉलोनी को पावर नहीं होता है, ओमपुरा को पावर नहीं होता है, शेखपुरा कॉलोनी में पावर नहीं होता है। बिजली की वजह से इस वक्त सर पूरी प्रॉब्लम है, हर कोई चीज़ इस वक्त बिजली से ही हो रहा है। तो क्या अपील करेंगे सर? बिजली होनी चाहिए और क्या। और जिला पुंछ को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड पर टनल की तामीर के मुतअद्दिद ऐलानात के बावजूद जमीनी सतह पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। टनल का काम शुरू न होने की वजह से लोगों में काफी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों ने मुगल रोड पर टनल की तामीर का काम जल्द शुरू करने का मुतालबा किया है। वहीं बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना बार बार पुंछ राजौरी जिले में मरकजी हुकूमत के तरक्याती कामों के हिस्से के तौर पर मुगल रोड पर टनल के लिए रकम जारी करने का दावा कर रहे हैं। पुंछ के लोगों का कहना है कि मुगल रोड पुंछ और राजौरी अजला के लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, जहां इस रास्ते से तिजारत होती है। वहीं पीर पंजाल के इस तरफ के लोग इलाज के लिए कश्मीर के अस्पतालों में जाना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर मरकजी हुकूमत ने मुगल रोड पर टनल के लिए रकम की मंजूरी दी है तो जमीन पर टनल के काम को शुरू किया जाना चाहिए। बात जो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे उसका जबरदस्त काम चल रहा है और जम्मू राजौरी पुंछ से होता हुआ नेशनल हाईवे वादिये कश्मीर को जाएगा। 12,000 करोड़ का टनल और 8,000 करोड़ जो स्नो गैलरी और हाईवे के काम में आएगा। लगभग 20,000 करोड़ रुपया नितिन गडकरी साहब ने, मोदी साहब ने मुगल रोड टनल और कनेक्टिविटी और इस हाईवे को दिया है। हुकूमत से ये भी हमें पता चला था कि पैसा जो है वो रिलीज हो गया है। अगर रिलीज नहीं हुआ तो उसको रिलीज करके, क्योंकि पुंछ राजौरी के जितने पीर पंजाल खिता है इसके लिए ये टनल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टनल होगा तो हमारी रोड 12 महीने चलेगी। यहाँ बीमार काफ़ी मुश्किलात में रहते हैं और अभी तक ये नवंबर तक ये रोड जो है अक्टूबर-नवंबर तक चलती है, फिर उसके बाद बंद हो जाती है। मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है, जितनी जो ऑनरेबल सिस्टम गवर्नमेंट है उसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे पुंछ राजौरी के लिए अगर ये तोहफा दे दें तो बहुत बड़ी बात होगी। जल्दी से जल्दी ये टनल का काम जो है श्रीनगर के लिए, कश्मीर के लिए ये किया जाए ताकि पुंछ और कश्मीर जो है यहाँ पे जुड़ सके। नितिन गडकरी साहब ने ये ट्वीट पे भी लिखा है और न्यूज़ पे भी आया था कि हमने पैसा रिलीज करा है इसके टनल के लिए। तो काफ़ी देर हमें ये जो पेंडिंग रखा है किस लिए रखा है, हमारी गुजारिश है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ा कुछ करना चाहती है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन अगर ग्राउंड की बात कीजिए तो उसमें हमें कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए अभी तीसरे दिनों मुगल रोड बंद होगी, 3 बार मुगल रोड बंद हो चुकी है, तो हमारे लोग बड़े सफर कर रहे हैं क्योंकि हमारा काफ़ी जो हमारा बिजनेस यहाँ से हमारा जो सब्जी वगैरह यहाँ से भी आ रही है और मेडिकली हमें ये नज़दीक पड़ता है। तो हमारी ये गुजारिश है हमारे जो LG यूपी के LG मनोज सिन्हा साहब से और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो हमारे जो यासिन साहब से, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये जो पैसा जो इन्होंने कहा है अनाउंसमेंट जो की है इसका पैसा लगना चाहिए और काम होना चाहिए। देखिए काफ़ी अरसा से जो है मुगल रोड की जो है कंडीशन जो है वो ख़राब ही रहती है। खासकर अगर हम बात करें जब मुगल रोड थ्रू होती है तो तब भी वहाँ पे कोई ना कोई लैंडस्लाइडिंग या कोई ना कोई बर्फबारी का सिलसिला जो है रहता है। मैं समझता हूँ
कि ग्राउंड की जो सतह पे जो है बीजेपी यहाँ पे बिल्कुल फेलियर है, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली, हमने इतने हजारों लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो सैंक्शन किए हैं यहाँ के टनल के लिए, मगर ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल देखने और सुनने में जो जीरो जो है वो हमें मिल रहा है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लद्दाख के सांसद जामयांग ने दी जानकारी। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए भाजपा है सक्रिय, बूथ को शुरू करने के लिए किया गया है प्रोग्राम। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में दी जा रही है जानकारी। महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए पुरस्कार। नागबनी के फुलोरा की सरपंच वंदना कुमारी को दिया गया यह पुरस्कार। धर्मशाला से विदेशी पैराग्लाइडर पायलट के लापता होने का मामला, न्यूज 18 की जानकारी पर धर्मशाला पुलिस ने लिया संज्ञान। बेटी ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए की लोगों से पिता को खोजने की अपील। हमीरपुर में ऑनलाइन ठगी करने वाले अब कम पढ़े लिखे लोगों को बना रहे अपना शिकार। सब्जी विक्रेता से 7,000 रुपए की ठगी, सेना को सब्जी मुहैया कराने के नाम पर दिया धोखा। पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से न्यूजीलैंड टीम के सदस्यों ने की मुलाकात। 28 अक्टूबर को HPCA के धर्मशाला स्टेडियम में न्यूजीलैंड खेलेगी ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट मैच। इटावा में तांत्रिक दीपिका नंद गिरी गिरफ्तार। तंत्र मंत्र और पिटाई से महिला की हत्या करने का आरोप। झांसी में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। 15 लाख के जेवरात और कैश भी बरामद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। सियाती मकाम गुलमर्ग में विंटर टूरिज्म, सरमाई खेलों और दीगर सरगर्मियों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महकमे सयाहत के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने गुलमर्ग में इन तमाम तैयारियों का जायजा लिया। आबिद रशीद का कहना है कि 1947 के बाद पहली बार इस साल जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तादाद में सयाहों ने कश्मीर की सैर व तफरीह की है। अब 2 करोड़ से ज्यादा सयाहों के कश्मीर आने की उम्मीद है, जिसमें सर फहरिस्त गुलमर्ग है। इसको देखते हुए आबिद रशीद ने बर्फ हटाने के मंसूबे और सड़क राब्ते, पीने के पानी की फराहमी, ढलानों की हमाहंगी, स्की स्लोप्स की बेहतरी, निगरानी और रेस्क्यू टीमों के काम, सयाहों के लिए तिब्बी सहूलियात और बुनियादी सहूलियात का ऑडिट करने और भारी बर्फबारी की वजह से पैदा होने वाली किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए जवानों और मिशनरी को तैयार रखने की हिदायत जारी की है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म उरूज पे है। लास्ट ईयर हमारे सबसे रिवायती जब भी 1947 से हाईएस्ट नंबर्स थे 1 करोड़ 88 लाख। इस बारी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 2 करोड़ से बहुत ज़्यादा तजावुज़ कर जाएगा फिगर। हम एंटिसिपेट करते हैं कि इस विंटर में टूरिस्ट रश बहुत हाई होगा, नंबर्स बहुत हाई होंगे और उस सब की तैयारी में खा वो रोड क्लियरेंस हो, खा वो स्कीम की तैयारी हो, स्नो बेटिंग हो, खा वो मशीन्स प्रोक्योर करना हो या मशीन्स की मेंटेनेंस अपग्रेडेशन हो, या वो गंडोला के रिलेटेड जितने भी स्ट्रीमलाइनिंग के मामलात हो, उन सब पे इलाबोरेट रिव्यू किया गया। और मैं खुशी से आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने पाया कि तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं। मैंने कोई अहकाम जारी किए हैं कि जहाँ जहाँ पे अगर इनकेस कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड और बेहतर करने की ज़रूरत है, वो किया जाए। जब यहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा शदीद होती है तो वहाँ रोड जैम्स होते हैं, उसका ख़ास ध्यान रखा जाए। नंबर 2 ये कि वहाँ पे स्नो क्लियरेंस का इस तरह का एक रोबस्ट स्ट्रीमलाइन मैकेनिज्म हो जिसकी पहले ही तैयारी की गई हो। और BSF 79 BTN ने आज श्री धोधाद्री आश्रम राजौरी से स्वच्छ भारत मिशन रैली का इनेकाद किया, जिससे मुल्क को साफ सुथरा रखने के लिए पैगाम दिया गया। 3 किलोमीटर तवील इस रैली में बड़ी तादाद में BSF के जवानों और अफसरान ने शिरकत की। वहीं सिविल सोसाइटी के अरकान ने भी इसमें शिरकत की। 79 बटालियन की तरफ से CO साहब का और उनके 2IC
पूरी यूनिट की तरफ से किया गया है। जैसा कि मोदी जी का एक प्रोग्राम है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उस प्रोग्राम के तहत ये मंदिर में पहले भी 79 बटालियन के सारे रैंक्स वाले आए थे, सफाई करके गए थे। आज फिर दोबारा से इन्होंने रन फॉर रखा है इसके सफाई के लिए। उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है जिसमें हमारे सरपंच साहब हैं, रोतरा साहब हैं, बाकी ये 79 बटालियन की तरफ से हम आज स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत इस मिशन के तहत हम यहाँ पे सभी एकत्रित होते हैं और यहाँ पे हम अपनी एक पैदल का 3 किलोमीटर का मार्च करेंगे और इसी में हम लोग इस कार्यक्रम को बड़े जोश से और बड़े उल्लास से और इसमें हम भाग ले रहे हैं। फ्रीडम रन का आयोजन 79 बटालियन बीएसएफ की तरफ से किया गया। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान जो हैं वो सुबह सुबह उन्होंने इस दौड़ में जो है वो हिस्सा लिया और 3 किलोमीटर लंबी दौड़ का ये हिस्सा बने। इसका मकसद यही है कि स्वच्छता को यहाँ पर फैलाया जाए, यानी स्वच्छता को पैगाम जो है वो जन जन तक पहुँचाया जाए और लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि किस तरह से वो स्वच्छता जो है वो रखें। इसी मकसद को लेकर जो है फ्रीडम रन 79 बटालियन बीएसएफ की तरफ से की गई। यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो है मेरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन्होंने आज इस दौड़ में जो है वो हिस्सा लिया। न्यूज और जुजाम के मर्ज में मुब्तला लोगों के लिए भगवती नगर जम्मू के इलाके में वाक़ कुष्ठ रोग आश्रम 1948 में कायम किया गया था। ये आश्रम हुकूमत की तवज्जो जुजाम के मरकज और उस जुजाम के मर्ज के शदीद मसाइल की तरफ मबजूल करवा रहा है। इस कॉलोनी में 60 से ज्यादा खानदानों को पनाह दी गई है। ये लोग माजूरी और बदनज़मी की वजह से अपने आबाई मकामात पर जाने के काबिल नहीं। कुष्ठ रोग आश्रम 1948 में कायम किया गया था। इस कॉलोनी में जजाम के मर्ज में मुब्तला अफराद पनाह गजीन हैं। कॉलोनी में 60 से ज्यादा खानदानों को पनाह दी गई है, लेकिन माजूरी और बदनज़मी की वजह से इन मरीजों के मसाइल में मजीद इजाफा हो गया है। इन मरीजों का कहना है कि सरकार की जानिब से इन लोगों की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। आप बताइए कि कितनी देर से आप यहाँ इस आश्रम में? मुझे यहाँ 50, 30, 40 साल से ऊपर ही हो गए हैं यहाँ आश्रम में। हाँ जी। आपकी फैमिली भी यहाँ रहती? हाँ, मेरे बच्चे हैं, बीवी है, बीवी भी हैंडीकैप है, वो भी लेपर्सी है, वो पीछे खड़ी है, उसके भी हाथ पाँव नहीं है। तो अब बच्चे हैं, बच्चों को हम इसी आश्रम में रहते थे। जब गांव से आ गए हम, तो अब गांव में तो हम जाने के लायक रह नहीं रहे। फिर यहाँ हमारे बच्चे हो गए, दो बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, उनको हम मेहनत करके मांग शांग के पढ़ाते हैं। हम ये चाहते हैं अगर हम तो मर गए लेकिन हमारे बच्चों को ये ऐसी नौबत नहीं आए। साइल जो आपके दरपेश हैं, जो आप जैसा आप कह रहे हैं कि आपको स्मार्ट मीटर के लिए कहा गया है और जो पेंशन अब 1 साल से ले रहे थे वो आपको नहीं मिल रही है, और दीगर कई ऐसी चीज़ें जो आपको राशन या वगैरह सरकार की तरफ से मिलता है, उसमें भी किल्लत है। अभी तक आपके पास सरकार नहीं है, क्या कहेंगे? सर, अर्ज़ ऐसे है कि ये आश्रम, जैसे मेरे भाई ने बताया कि 1948 में आश्रम बना था, 1975 में रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद आज से पहले 1 महीना यूटी गवर्नमेंट के तहत ये रजिस्टर्ड हो गया। तो जब से ये आश्रम बना है सर, मुझे भी यहाँ पे 40-45 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे किसी ने स्मार्ट मीटर की या मीटर की बिजली के बिल की कोई बात नहीं की। तो इस साल अचानक ही आके कहने लगे कि भाई आपकी बिजली काट देंगे, आप स्मार्ट मीटर लगवाओ। तो अगर मीटर नहीं लगवाओगे तो आपको बिजली नहीं मिलेगी। तो अर्ज़ ऐसे है सर कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगवा सकते क्योंकि आश्रम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे रखा हुआ है। गवर्नमेंट ग्रांट देती थी हमें पिछले साल, वो भी नहीं दी, वो बंद कर दी। राशन की भी काफ़ी किल्लत आ रही है, हमें राशन भी हमारा पूरा नहीं हो रहा, दवाइयों की किल्लत आ रही है, हर चीज़ की हमें किल्लत आ रही है सर। एक तो ये लोग बिल्कुल बेसहारा हैं, इनके लाते वगैरह नहीं हैं, हाथ नहीं है, कोढ़ की बीमारी इनको लगी है, लेपर्सी बीमार हैं ये लोग अपने अपने वतन को, अपने घर को, अपने सब जगहों को छोड़कर ऐसे दरबदर में थे। इनके लिए गवर्नमेंट ने, जो पुरानी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये आश्रम बनाया कि इनको यहाँ पर इकट्ठे रखो, बेचारे दरबदर ना हो जाएं, कि ऐसे गलियों में ना मरे। इस कॉलोनी के मकीनों को 1000 रुपए सालाना पेंशन के तौर पर मिल रहे थे। ये अफराद महकमे समाजी बहबूद में ऑनलाइन तलब करदा दस्तावेजा तकरीबन साल भर पहले ही तस्दीक के लिए जमा करा चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनमें से चंद अफराद की ही रजिस्ट्रेशन हुई है और बाकी के अफराद अभी तक रजिस्ट्रेशन के मुंतजर हैं। हमारा पेंशन का मोड था वो पहले ऑफलाइन था,
तो पहले जो पेंशनर्स थे वो ऑफलाइन मोड में जाके अप्लाई करते थे, उनकी सैंक्शन कर दी जाती थी। लेकिन आप जानते हैं कि जैसा अब जो सिस्टम है हमारा, हम लोग ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं सिस्टम में, तो जो सारे पेंशन के बेनिफिशरीज थे जिन्होंने जो एग्जिस्टिंग हैं और न्यू हैं, वो सब लोग जो हैं उनकी फिर से उनको अप्लाई करने की ज़रूरत है। और हमारा जो पोर्टल है वो जन सुगम पोर्टल है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज थे, काफ़ी मात्रा में तकरीबन सभी ने ऑनलाइन मोड पे अप्लाई कर दिया है। और डिपार्टमेंट का प्रयास है कि कोई भी एलिजिबल बेनिफिशरीज जो है वो इस पूरे प्रोसेस से छूट ना जाए। उसके लिए डिपार्टमेंट ने जगह जगह कैंप्स लगाए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, हमारे तहसील ऑफिसर्स वो लोगों की जो हेल्प के लिए बिल्कुल मौजूद हैं। स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन भी अब इन अफराद के लिए एक नया दर्द सर बन गया है। इन मरीजों से इंस्टॉलेशन के लिए तमाम रस्मी कार्रवाइयों के साथ आने के लिए कहा गया है। जजाम के मर्ज में मुब्तला ये लोग आश्रम के कयाम से ही बिजली की फीस अदा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मुतल्लिका महकमे ने इस आश्रम की बिजली बंद कर दी है। न्यूज़ 18 ने इस मामले पर चीफ इंजीनियर PDD से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने